নমস্কার, স্বাগত আপনাদের প্রত্যেককে। হায়দ্রাবাদের কুলি কুতুব শাহ স্টেডিয়াম থেকে কথা বলছি, সমরেশ জানা, সঙ্গে রাজা বাবু। 2K25 হায়দ্রাবাদ বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। হায়দ্রাবাদ বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে আজকে উদ্বোধনী ম্যাচ এই মুহূর্তে চলছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিল, একেবারে গোধূলি লগ্ন থেকে প্রত্যেকে অপেক্ষা করছিলেন এই 1000 ওয়াট আলোর রোশনাইয়ে 22 গজে রণদুন্দুভির জন্য। একটা রান ইতিমধ্যেই চলে এসছে খোকন হালদারের ব্যাট থেকে, দ্বিতীয় রান সেটা সরোজ প্রামাণিকের ব্যাট থেকে। প্রথম ম্যাচে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে, একদিকে স্মৃতি সংঘ, অন্যদিকে সবুজ সংঘ, এবং ম্যাচের স্টার্ট টাইম 6:57। টসে জয়লাভ করেছে সবুজ সংঘ, তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্মৃতি সংঘকে। 7 ওভারের ম্যাচ, 7 ওভার্স ম্যাচ। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, উদ্বোধনী ম্যাচ আপনারা দেখছেন। দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার স্মৃতি সংঘের হয়ে শুরু করতে এসছেন সরোজ প্রামাণিক এবং খোকন হালদার। 4 জন করে আইকন খেলোয়াড় হায়দ্রাবাদের বাইরে থেকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা পার্টিসিপেট করেছেন। রিন্টু রয়, খোকন হালদার তার ট্রেডমার্ক শট একটু সাফল করে অফ স্টাম্পে খেলার চেষ্টায় ছিলেন, তবে পরাস্ত হয়েছেন এক্ষেত্রে। উইকেট রক্ষকের হাত ঘুরে বল ফেরত যাচ্ছে। গত বল থেকে কোনো রান আসেনি। লাইভ আসছে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে ইউটিউবে, হায়দ্রাবাদের কুলি কুতুব শাহ স্টেডিয়াম থেকে। রিন্টু চলেছেন ওভার দি উইকেট। খোকন হালদার মেজাজে মোস্তানি। কুলি কুতুব শাহ আরো একবার হয়তোবা সাক্ষী হতে চলেছে, একেবারে প্রথম ম্যাচেই সারা বাংলায় যেভাবে তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই মেজাজটার সাক্ষী হতে চলেছে। ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি, টুর্নামেন্টের প্রথম ওভার বাউন্ডারি এলো খোকন হালদারের ব্যাট থেকে। এই মুহূর্তে চর্চিত নাম সারা ভারতবর্ষে টেনিস ক্রিকেটে। গত কয়েক মরশুমে এই ছেলেটি যেভাবে লাইমলাইটে এসছেন, তার ব্যাটিং শৈলী, তার অভিজ্ঞতা, সবকিছু দিয়ে ধারাবাহিকতা, সব থেকে বড় কথা, ধারাবাহিকভাবে চাপের মুখে প্রয়োজনে বড় ইনিংস খেলে চলেছেন। এবার ব্যাট করবেন সরোজ প্রামাণিক। বল হাতে দৌড় শুরু করবেন 4 মিনার প্রান্ত থেকে রিন্টু রয়। প্রামাণিক গর্জে উঠল তার ব্যাট, ইনটু দ্য স্ট্যান্ড, 6। দ্বিতীয় ওভার বাউন্ডারি। এবং প্রথম ওভারের খেলা যখন শেষ হলো, স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো 15 বিনা উইকেটে স্মৃতি সংঘ। 7 ওভারের ম্যাচ। টসে জয়লাভ করেছে সবুজ সংঘ, তারা প্রথমে বিপক্ষ দলকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্মৃতি সংঘকে। টাইম বাউন্ডেশন রয়েছে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। 35 মিনিটস ম্যাক্সিমাম 7 ওভারের জন্য। আর যদি এই সময়ের মধ্যে 7 ওভার কমপ্লিট না হয়, একজন ফিল্ডার কিন্তু মাঠের বাইরে চলে যাবেন। অতএব এই দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা ওভার খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পরের ওভারটা যাতে দ্রুত স্টার্ট হয়, ফিল্ডিং সাইডকে এটা খেয়াল রাখতে হবে। 3 লক্ষ টাকা চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য, 2 লক্ষ টাকা রানার আপ টিমের জন্য। সঙ্গে সমস্ত পুরস্কার রয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, রানার আপ ট্রফি, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। প্রত্যেক ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমরা আসবো পরবর্তী সময়ে। নতুন ওভার প্রীতম মার্জিত, তাকে আনা হয়েছে। যারা টেনিস ক্রিকেট ভালোবাসেন, খবর রাখেন, প্রত্যেকেই জানেন এই দুই খেলোয়াড় মুখোমুখি হয়েছেন এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের
একদিকে প্রীতম মার্জিত, অন্যদিকে খোকন হালদার। সামান্য বাইরে, অফ স্টাম্পের পরাস্ত হয়েছেন খোকন হালদার। এক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখালেন প্রীতম মার্জিত। একটা ডট বল, সান্টু খালসা উইকেটের পেছন থেকে খেলোয়াড়দের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করাচ্ছেন। ডিপ থার্ডম্যান, ডিপ পয়েন্ট, ডিপ কাভার, ডিপ এক্সট্রা কাভার, লং অফ, লং অন, ডিপ মিড উইকেট, স্কোয়ার লেগ। পরের বল প্রীতম মার্জিত। না, এই বলটা কোনোভাবে মাপ করবেন না, এটা একেবারে আছড়ে পড়বে স্টেডিয়ামের বাইরে। খোকন হালদার ফুলটস বল, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিলেন, 6 রান। তো নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক অতীতে খোকন হালদারের ব্যাট থেকে যে ধরনের ইনিংস আমরা দেখেছি, আজকেও শুরুতে সেই ইঙ্গিতটাই দিয়ে রাখলেন খোকন হালদার। 13 রানে ব্যাট করছেন 6 বল থেকে। আরো একবার মাঠের বাইরে যাবে, 6। আরো একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। যেভাবে পিক করলেন, রিড করলেন বলটা, সেটা দেখার মতো ছিল। এটাই তার স্বভাবোচিত ভঙ্গিমা এবং বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করছেন একেবারে। স্টেডিয়ামের চারিদিকে দর্শকদের কলকাকলি, প্রত্যেকে অন্তত খুশি খোকন হালদারের বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে। শুরুর দিকে 27 বিনা উইকেটে। রিভার্স মিস টাইমিং, হাওয়াই বল, নো ম্যানস ল্যান্ড। একেবারে ডিপ পয়েন্ট থেকে খেলোয়াড় এসে ফেরত পাঠাচ্ছেন। আর ওদিকে প্রান্ত বদল দুই ব্যাটারের মধ্যে। আরো একটা রান এলো খোকন হালদারের ব্যাট থেকে। 28 বিনা উইকেটে। স্মৃতি সংঘ ব্যক্তিগত 20 রানে ব্যাট করছেন খোকন হালদার। 8টি বল খেলেছেন সরোজ প্রামাণিক, 3 বল থেকে 7 রান করে অপরাজিত। ওভারের শেষ বল, এটা উড়ে উড়ে যাবে মাঠের বাইরে, কাভারের উপর দিয়ে। মিস্টার অলরাউন্ডার সরোজ প্রামাণিক শেষ বলটা একেবারে ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিলেন 6 রানের জন্য। দ্বিতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, আর 2 ওভার শেষে স্মৃতি সংঘ তাদের সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 34। কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার যে স্টার্টটা দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে খুশি হবেন মিস্টার শ্যামল বেজ, এছাড়াও টিমের সমর্থকেরা। আমরা পরবর্তী সময়ে কৃতজ্ঞতা জানাবো এই টুর্নামেন্টকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপাতত সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিয়ে আমরা আগামী সময়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ওদিকে নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে। তৃতীয় ওভার, আবারও রিন্টুকে আনা হয়েছে তার প্রথম স্পেলে। দ্বিতীয় ওভার, এটা তার কোটা শেষ ওভার। সুপার টাইমিং, 6 রান। খোকন হালদার ক্লাস, রিদম, টেকনিক, যা কিছুই আপনি বলবেন সবকিছুই তার কাছে রয়েছে। হায়দ্রাবাদের কুলি কুতুব শাহ স্টেডিয়াম 1000 ওয়াট আলো রোশনাইয়ে আরো একবার হয়তোবা মারতে চলেছে তার ব্যাটিং মহিমায়, তার ব্যাটিং তাণ্ডব, তার ব্যাটিং শৈলী দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। রিন্টু রয় ইনসাইড আউট, মাঠের বাইরে এক্সট্রা কাভারের উপর দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক দুটো দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। খোকন হালদার সময় যত এগোচ্ছে ক্রমশ বিধ্বংসী হয়ে উঠছেন, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন। এটাই তার চেনা মেজাজ। দলের রান যেখানে 46, স্মৃতি সংঘের ব্যক্তিগত 32 রানে ব্যাট করছেন খোকন হালদার। 10টি বল খেলেছেন, 300-রও বেশি স্ট্রাইক রেট। সেটা জানান দিচ্ছে লক্ষ্যটা তার পরিষ্কার। 7 ওভারের ম্যাচ,
যত সময় থাকবেন ক্রমাগত আক্রমণে যাবেন। এবার একটু ডায়াগোনাল বল করলেন, এন্ডটা চেঞ্জ করেছেন রিন্টু রয়। এত সময় ওভার দ্য উইকেট বল করছিলেন, রাউন্ড দ্য উইকেট বল করলেন, অফস্টাম্পে বাইরে রাখলেন। একটু সাফল করে খেলার চেষ্টা ছিল, পরাস্ত হয়েছেন। সান্টু খালসা, তার হাত থেকে বল ফেরত গেছে রিন্টু রয়ের হাতে, চারমিনার প্রান্ত থেকে। পরের বল আরো একবার বল মাঠের বাইরে যাবে, ফ্ল্যাট 6। খোকন হালদার রূপকথার কাহিনী লিখে চলেছেন গত কয়েকটা মরশুমে মুর্শিদাবাদের এই ছেলেটি। শুধুমাত্র বঙ্গ টেনিস ক্রিকেট নয়, ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটে এই মুহূর্তে অন্যতম চর্চিত নাম। তার উত্থানের গতি রূপকথার কাহিনীকে হার মানাবে, রকেটের উত্থানের গতিকেও হার মানাবে। এটাই খোকন হালদারের ব্যাটিং স্টাইল, এটাই তার ব্যাটিং শৈলী, যে কারণে এত মানুষ তার ব্যাটিং মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রত্যেকে অন্তত উপভোগ করেন। অর্ধশত রান থেকে 12 রান দূরে দল এই মুহূর্তে 50 রানের গন্ডি টপকে গেছে। আরো একবার খোকন হালদার মিড উইকেটের উপর দিয়ে একেবারে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে, গ্যালারিতে 6 রানের জন্য। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 58, 58 উইদাউট এনি লস। স্মৃতি সংঘ well connected shot, খোকন হালদার রিদম ক্লাস স্টাইল সবকিছু নিয়ে আরো একবার সমহিমায়। হার না মানা লড়াকু মানসিকতা, গতিময়তা, রানের গতিময়তা তার মনের, আর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশত রান। হোয়াট আ ইনিংস প্লেড বাই খোকন হালদার, সুপার ইনিংস, দুর্দান্ত হাফ সেঞ্চুরি। দর্শকরা মাঠের চারিদিক থেকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করছেন মুর্শিদাবাদের বেতাজ বাদশাহ, 22 গজের রাজা তিনি। আরো একবার প্রমাণ করলেন টুর্নামেন্টের প্রথম ইনিংসেই এখনো পর্যন্ত দ্রুততম অর্ধশত রান, 8টি দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি, 15 বল থেকে 50 রান করে অপরাজিত, 2টো সিঙ্গেল, 8টা ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে 50 রান পূর্ণ করলেন তিনি। 3 ওভারের খেলা শেষ, 64 বিনা উইকেটে। পরবর্তী 4 ওভারের খেলার গতি প্রকৃতি কোন দিকে এগোবে সে কথা নিয়ে জুনিয়র আকাশ চোপড়া জয়েন করছে কমেন্ট্রি বক্সে। ফার্স্ট টাইম ইন হায়দ্রাবাদ, রাজা বাবু। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धन, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। ऐसा मानो बीच मैदान में 6 सिटिंग मशीन लगा दिया गया हो और वहीं पिटाई हो रही है। एक तरफ मिस्टर ऑलराउंडर, दूसरी तरफ इस समय के टॉप क्लास बैटर खोखन हलदार। 15 गेंदे 50 रन, 4 गेंदे 13। एंकरिंग का रोल अदा कर रहे कप्तान साहब, और कप्तान साहब को मालूम है कि कैसे करनी है इस समय बल्लेबाजी। अच्छी तरीके से जानते हैं, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और कप्तान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप पिटाई करें, बल्लेबाजी बेहतर करें। कप्तान का मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन के अनुसार आप कैसे खेल सकते हैं। वही रवैया देखने मिला है, मेरन मोया है गेंदबाजी के लिए। अगर ऐसी पिटाई के सामने शायद ही कोई गेंदबाज कहेगा कि मुझे गेंदबाजी करनी है। 65 बन चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। इसके बाद भी 3 ओवर का खेल और बचेगा। ये अर्धशतक और कॉन्फिडेंस दे जाएगा खोखन हलदार को। पिछले 1 या 2 सालों में जिस तरीके से उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना नाम को छोड़ा है, वो काबिले तारीफ है। दिन में 10 में 10 बार लगा सकते हैं ये। इतनी आसानी के साथ अगर गेंदबाजी होती जाएगी तो फिर मुश्किल और बढ़ता जाएगा आपके लिए। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 71।
71, 71 पे विकेट अभी तक गंवाए नहीं है। और जितना काम बेहतर खो खो नल्लार ने किया है उतना काम बेहतर सौरभ प्रामाणिक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं उनका बल्ला बोल रहा है तो उससे ज्यादा स्ट्राइक मिले। नहीं डालने का बाबा, ऐसे डालते जाओगे पिटाई होती जाएगी आपकी। एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ, इस ओवर बाउंड्री के साथ स्कोर में इजाफा हो गया 77 विदाउट लॉस। इतनी पिटाई शतक के भी करीब जा सकती है, फिर शतक भी लगा सकते हैं ये। इससे पहले झारग्राम चैंपियंस लीग में हम सब ने शतक देखा था उनसे, आखिरी के 4 ओवर में शतक जड़ दिया था उन्होंने। 6 ओवर के मुकाबले में अगर शतक कोई बल्लेबाज जड़ता था फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी आप कर रहे हैं। और इस समय तो बिल्कुल अलग ही फॉर्म में ये ऑन हैट्रिक। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल वहीं हो रही है, बैट पे आ रही है तो ओवर बाउंड्री जा रही है, या फिर बॉल हो रही है तो वाइड जा रही है। अब गेंदबाज करे तो करे क्या, अच्छी गेंदों पे जब पिटाई हो जाती है तो फिर गेंदबाज कहेंगे कि नहीं करना मुझे, अब कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं तो पिटाई होती है। अब सामने डालने का प्रयास करें तो पिटाई होती है, बाहर डालने का प्रयास करते हैं वाइड हो जा रही है। काफी देर बाद राहत की सांस ली है, 13 गेंदों के बाद एक डॉट बॉल, 78 पे 0। अब 0 से शिखर तक तो एक टीम पहुंच चुकी है। टॉस जीत के किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला, उस फैसले को अभी तक गलत साबित किया है स्मृति संगो ने, मगर दोनों टीम चाह रही थी कि उससे करनी है पहले क्षेत्र रक्षण। एक और ओवर बाउंड्री आया है, इस बार उससे बड़ा आया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से आता हुआ 6 रन 6 के साथ स्कोर 84। खो खो नलदार पहुंच गया है मात्र 19 गेंदों पे 68। बल्लेबाजी हो रही है फिर खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाज के साथ। अब गेंदबाज करे तो करे क्या। तीन टीम एक ग्रुप में आएगा। ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। पहला मुकाबले में पहले 4 ओवर हुआ मुकम्मल, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 84 रन। विकेट अभी तक आपने गंवाया नहीं है। जैसी शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत तो मिल चुकी है। अब पहला मैच अगर आप जीत जाएं तो फिर आप अपने लीग में टॉप पे ही रहते हैं, वो शुरुआत आपने कर दी है। अब जीत के करीब कौन जाएगा ये देखना पड़ेगा, मगर पहला 4 ओवर अपने पक्ष में किया है ये टीम। सरोज प्रामाणिक, साथ ही साथ खोखन हलदार, आने वाले बल्लेबाजों में तोपू आपको नजर आएंगे, आपको रिव्यू नजर आएंगे, और भी कई सारे बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। 4 आइकॉन आपको नजर आते हैं हर टीम में। सरोज प्रामाणिक यहाँ पे आइकॉन के रूप में आए, खोखन हलदार, रिबू जाना, तोपू। अब गेंदबाजी के लिए कौन आएगा ये देखना पड़ेगा। सांटू खालसा है गेंदबाजी के लिए। अब सांटू खालसा अगर आप देखें लीग स्टेज में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, और पिछला साल भी उनका बेहतर था हैदराबाद में गेंदबाजी करते हुए। थोड़ी सी चालाकी से गेंदबाजी करने का प्रयास, मगर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। तो प्रारंभिक अंपायर इस मैच के एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं मिस्टर श्रीकांत बेहरा, और दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं आपको मिस्टर पिनाकी पोंडा, जो थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं। लेग अंपायर के रूप में मौजूद है मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तो। अरे भाई साहब, अपने पिटारे में से एक और गजब का शॉट निकाला है 6 के लिए, दर्शक दीर्घा तक पहुंचा है। वेल डन कप्तान साहब। कप्तान चला बीच मैदान, सी नाथन। ऐसा मानो रनों का अंबार लगाना चाहते हैं ये टीम। पहली 5 ओवर अगर देखें, ये पहली बॉल हुई है 91 पे पहुंच गया है। अब 6 गेंदे 20। सेंसिबल क्रिकेट है ये, अच्छी तरीके से जानते हैं कि रन्स बन चुके हैं, थोड़ा सा वक्त और दिया जाए। सेट बैटर के लिए अंत तक खेलना, नए बल्लेबाज को आके पिटाई करना उतना आसान होता नहीं जितना आपको दिख रहा है। वो छक्के लगाने के लिए बीच मैदान में थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ता है। अब दोनों बल्लेबाजों ने काफी वक्त बिता दिया है तो ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। 91। ये शॉट इनका सबसे अलग होता है। कितनी दूर गई है, सबसे अलग होता है, और ऐसा कई बार खेलते भी हमने देखा है। निकल कर खेलते हैं, और इनको अगर समरेश दा के भाषा में कहें मेजाजे मस्तानी, बिल्कुल अपना मस्तान वाला अंदाज दिखा रहे हैं। वो सामने गेंदबाज बदला, मगर रवैया दोनों बल्लेबाज का वही था कि
छक्के के लिए ही जाना है। बैटिंग साइड रिव्यू, फ्रंट फुट नो बॉल। अब बैटिंग साइड चेक की जाएगी। एक ही रिव्यू आपके पास होता है, उसका आप इस्तेमाल कर लें। एक एक रिव्यू होता है, आप दोनों टीमों के पास एक इनिंग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटिंग साइड रिव्यू 97 बन चुका। अगर ये नो बॉल होगी तो 98 होगा, वो अलग बात है, मगर चेक की जा रही है। थर्ड अंपायर मौजूद है मिस्टर पिनाकी पोंडा, चेक की जा रही है। बारीकियों से देखा जा रहा है, एक एक चीज को काफी नजदीक से देखा जाएगा ताकि किसी भी चीज की दिक्कतें आए ना आपके लिए। आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं आप, AR लाइव पे जाए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा करवाया जा रहा है टूर्नामेंट, बंगाल वॉरियर्स। फेयर बॉल, रिव्यू लॉस्ट बल्लेबाज टीम के पास। खोखो नल्लार ने कहा था कि ले लीजिए आप। कड़क शॉट है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, एक तो आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे आप। जब सिंगल आती है ऐसा मानो गेंदबाज के लिए राहत की सांस होती है, क्योंकि इस मैदान पे अब तक जो देखा गया पहला मैच में सिर्फ छक्के के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 9 गेंदे 27 रन सरोज प्रमाणिक, 20 गेंदे 68 रन खोखन हलदार। चाहे वो रिंटू रॉय की बात करें या फिर आप बात करें प्रीतम मर्जीत की, मिनमॉय की बात करें, पिटाई तो हुई है। अब पिटाई अगर आपके आइकॉन ही आइकॉन को पड़ जाए तो फिर वहां से वापसी कैसी हो पाएगी, वो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस ग्राउंड के अगर इतिहास की बात की जाए, 130 140 आसानी के साथ चेज भी होते हुए देखा गया है। क्या बात है संटू साहब, मतलब वो कहावत है ना कि जो काम आपका तलवार ना कर पाए वो सुई कर देती है, क्योंकि तलवार तो आपके पास नो बॉल। प्लेयर बाहर ज्यादा थे शायद, इसी वजह से नो बॉल है। शायद लेग साइड में ज्यादा होगा, यही सारा आराम पार का। नो बॉल। अच्छी गेंदबाजी की थी, मगर वो कहावत है ना कि आप अच्छा तभी कर पाते जब आपका सब चीज बेहतर हो पाए। लेग साइड में ज्यादा फील्डर होने के कारण शायद नो बॉल दी गई, अंपायर वहीं कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी आप कह सकते हैं। मैंने पिछले मतलब शुरू में ही कहा था कि संटू खालसा का हैदराबाद उनको थोड़ा सा जसता है, क्योंकि यहाँ पे जब वो गेंदबाजी करते हैं खास करके इस तरीके के मैच में, तो उनके लिए शायद आसान हो जाता है। गति देते नहीं है और गति पसंद है दोनों बल्लेबाजों को। अब तक तो शांति रखा गया है। वाइट बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन। इसी के साथ 100 रन पूरा होता हुआ, 100 के आंकड़े को छू गई ये टीम। टॉस हार कर भी अभी तक जीती हुई है, मतलब पहले 5 ओवर की अगर बात करें तो ट्रिपल डिजिट। स्मृति सोंगोट कप्तान साहब मौजूद है बीच मैदान पे अभी तक। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, फंसाया है, सेट बैटर को बाहर भेजा है। ऐसा मानो अपने तर्कस में एक जबरदस्त तीर निकाला, वहां से फंसाया इस टीम के सबसे होनहार बल्लेबाज खोखन हलदार को। वेल डन सांटू खालसा, आ गए हैं, अब छा भी गए हैं। बाहर जो गाड़ी रखे हैं प्लीज आप लोग रोड है उसको छोड़ के रखें, नहीं तो पुलिस आपकी गाड़ी को शायद चालान भी कर सकती है, फिर उठा के ले जा सकते हैं। बाहर जो भी हमारे दर्शक या पब्लिक गाड़ी को रख रहे हैं, थोड़ा साइड करके रखें, रोड जाम ना करें आप प्लीज।
बल्लेबाजी के लिए आए रितंकर जाना और रिबू, एक और होनहार ऑलराउंडर। आपके टॉप क्लास गेंदबाज जो ना कर पाए, पार्ट टाइम गेंदबाज ने वो करके दिखाया है। और मैंने शुरू में कहा था कि एक गैम्बल वाला ओवर था, वो बुलाया गया था किसी तरीके से ओवर को खत्म करने के लिए, मगर ओवर खत्म होते होते एक बड़ा विकेट। प्रीतम मरजीत, पहला ओवर थोड़ा सा महंगा इस बार, कुछ अलग करना होगा। कड़क शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, पीछे फील्डर, एक तो भाई साहब एक ही आने वाला था, मगर इनका ये सामने वाला शॉट ना काफी तीर के माफिक होता है। एक और 4 रन आता हुआ कप्तान के बल्ले से। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 104। वो जो निकल के स्टेप आउट करके खेलते सरोज प्रमाणिक ना, वो सबसे बेहतर दिखता है। एक तो रील उनका वायरल हुआ था हंसी मजाक करते हुए, स्टेप आउट तो आप नॉर्मली करते हैं, 2-3 गज आगे चले गए थे, वहां से वो छक्का लगा दिया था। क्या एक और आज देखने मिलेगा? क्या बात है, गजब! सबसे उम्दा शॉट है ये, सबसे मुश्किल शॉट होता है मगर सबसे आसानी के साथ खेल दिया कप्तान चला सीनातन। क्या बात है, मिस्टर ऑलराउंडर पैकेज है ये। ऐसा मानो इनके लिए सारी चीज आसान होती जा रही है। काफी आसानी के साथ खेला गया ये शॉट। फिर तो मर्जीत को आसान होता नहीं है कवर के ऊपर से खेलना। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, सिंगल लेना चाहते थे, 110 पे पहुंच गए आप। ये देखें आप इस शॉट को, इस शॉट के बारे में बात कर रहा था, इनको जितनी बार देखोगे उतना ही बेहतर दिखता जाएगा। फिर से देख लो यार एक बार, कवर के ऊपर से छक्के लगाना उतना आसान होता नहीं है। क्या बात है कप्तान साहब, अलग रवैया आपका, सबसे अलग इसी वजह से आप कहे जाते हैं। लेग स्टंप के बाहर, वाइड गया सर अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन। ये भी अंदाज में आया, ऐसा मानो ये बिजली की कड़क थी, इतनी तेज गति के साथ गई ने फील्डर को दिखाना, अंपायर को। ये गई है 6 रनों के लिए, 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 117। अब 16 गेंदों पे 43 पे तो ये भी पहुंच चुके हैं। ऐसा लगा था काफी धीमा पारी था, मगर धीमा भी अगर इतना बेहतर है तो फिर कहूंगा कि इससे धीमा और क्या हो सकता है। ऐसा लगा था खोखो नजर जब थे तो सरोज प्रमाणिक थोड़ा सा धीमा खेल रहे थे, मगर वो अगर धीमा था तो फिर अभी क्या कहेंगे आप। 16 गेंदे, 43 रन, एक छक्के की दरकार है, वहां से वो अर्धशतक तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है, जो भी आ रहे हैं काम वही कर रहे हैं जो सबने किया है। अब खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो रिबू साहब ने कहा कि खोखो ने लगाया, कप्तान साहब खुद लगा रहे थे, फिर मेरी क्यों देरी होगी, मैंने भी तो काफी तैयारी की है हैदराबाद वॉरियर्स टूर्नामेंट के लिए। वो सारे के सारे वॉरियर्स आए हैं। इसके बाद आने वाले जो मैचेस होंगे वहां पे आपको संजू कनौजिया नजर आएंगे, कई सारे और भी आइकॉन जैसे करण अंबाला, जॉन्टी सरकार, विरुआ वाघेला, अंकुर सिंह और भी कई सारे स्टार आपको एक साथ सरजमी में दिखेंगे। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास,
ये भी शायद जाएगी ओवर बाउंड्री, बैक टू बैक ओवर बाउंड्री आता हुआ। संटू खालसा को खेलना इसी वजह से इनके लिए आसान हो रहा है क्योंकि एक साथ कई बार मैच खेलते हैं और इनकी कप्तानी में संटू खालसा ने कई बार खेला है। अब जब साथ खेलते हो तो फिर आपकी कमजोरियां, आपकी ताकत को आप अच्छी तरीके से जान लेते हैं। वो ताकत को पहचाना भी है और उनको कमजोरियों में तब्दील भी किया है। सोमरिश दा टू बैक बाउंड्री रिबू रितंकर जाना, कमाल के ऑलराउंडर, दो बेहतरीन ऑलराउंडर वेस्ट बंगाल के आपको नजर आ रहे हैं। दो बेहतरीन ऑलराउंडर इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट, बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के पीछे खेला गया शॉट, 4 रन और आएगा। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा 137, 137 लॉस ऑफ 1। ये भी अलग है भाई साहब, मतलब पिच बेहतर है या फिर बल्लेबाज बेहतर है? मेरे हिसाब से यार टूर्नामेंट ही बेहतर है। Heartily welcome to our cricket tournament. Son of Zulfikar Ali, Honorable MLA Sir, कासिम मोहम्मद अबरार सर, वेलकम टू कुली कुतुब सा। हार्दिक स्वागत है, हमारे बीच आ चुके हैं सैफ खान सर एंड मोहम्मद अली बेग सर। सो हार्दिक स्वागत है हमारे हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2K25। आज पहला दिन और आप देख पा रहे हैं हमारे बीच आ चुके हैं ऑनरेबल कासिम मोहम्मद अबरार साहब, सन ऑफ ऑनरेबल MLA जुल्फिकार अली सर। हमारे बीच मौजूद है सैफ खान साहब एंड मोहम्मद अली बेग सर। सो सर प्लीज वेलकम एंड टेक योर सीट ऑन आवर मेन स्टेज। वी आर थैंकफुल आप लोग आए हैं आज पहला दिन हमारे इस टूर्नामेंट में। अब्रार मोहम्मद कासिम साहब, सैफ खान साहब एंड मोहम्मद अली बेग सर, हार्दिक स्वागत है हमारे मूल मंच में। अब्रार मोहम्मद कासिम सर, सैफ खान सर एंड मोहम्मद अली बेग सर, हमारे ऑनरेबल MLA जुल्फिकार अली जी की सन है। अब्रार मोहम्मद कासिम साहब, हार्दिक स्वागत है आपका। चले इसी बीच स्कोर, आखिरी बॉल का मौका मिला, आखिरी बॉल में भी 6 के साथ समापन किया है। ऐसा मानो सिर्फ 6 और 6 यानी छक्कों की बारिश थी पहला इनिंग्स में, चाहे वो सरोज प्रमाणी की बात की जाए या फिर बात की जाए खोखो नलदार की या बात की जाए रितंकर जाना की, और आखिरी बॉल पे मौका मिला वहां पे भी 6 जड़ा रिबू ने। আচ্ছা, পরবর্তী ম্যাচের দুই টিমকে আমরা আরো একবার রিপিট করছি মূল মঞ্চে হাবিবদার কাছে, অতনুদা রয়েছেন হাবিবদার কাছে দ্রুত প্লেয়ার লিস্ট জমা করার জন্য। শিবাজি স্টার এবং WLB 611 গ্রুপ বির ফার্স্ট ম্যাচ লিগ স্টেজ। নেক্সট ম্যাচ ग्रुप बी लीग स्टेज शिवाजी स्टार एंड WLB 611। दोनों टीम का कप्तान प्लेयर लिस्ट सबमिट कीजिए मंच पर। So again we are thankful for Mohammad Qasim Saab, son of Honorable MLA Zulfikar Ali sir. थैंक यू फॉर योर ग्लोरियस। आप और 4 चांद लग गए हमारे ये टूर्नामेंट में। जिस तरह से आप लोग का सपोर्ट बंगाली समाज को मिलता है हैदराबाद में, हम लोग थैंकफुल है आपके लिए। सैफ खान सर एंड मोहम्मद अली बेग सर, आज पहला दिन है इस टूर्नामेंट का और टेनिस क्रिकेट दुनिया का से बढ़कर पे खेलेंगे। पहला दिन में आप लोग में आए हैं, आपका सपोर्ट मिले हैं, बधाई एंड शुक्रिया आप सभी के लिए।
हेलो। तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन में आयुष रॉकर्स लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब में हमारे मूल मंच में पधार चुके हैं हमारे ऑनरेबल अबरार मोहम्मद कासिम साहब, सन ऑफ ऑनरेबल एमएलए जुल्फिकार अली सर, सैफ खान सर एंड मोहम्मद अली बेग के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे हैदराबाद एसोसिएशन की पहला दिन जिस तरह से आप लोग आए हैं, सपोर्ट किए हम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, পরবর্তী ম্যাচ শিবাজি স্টার আমরা নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই টিমকে বলছি দ্রুত প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করবেন মূল মঞ্চে, শিবাজি স্টার এবং WLB 611। चलिए, नए इनिंग्स की शुरुआत होगी। नए इनिंग्स में आप सभी के साथ जुड़ेंगे द वॉइस ऑफ बंगाल समरेश जाना सर, और इस हमारे मुख्य मंच में उपस्थित हो चुके हैं हमारे आदरणीय प्रिय श्री अबरार मोहम्मद कासिम साहब, उनका सन ऑफ एमएलए जुल्फिकार अली साहब, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करती है टूर्नामेंट कमेटी। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट के शान और शौकत को बढ़ाया है। Over to you, समरेश दा। অনেক ধন্যবাদ রাজা। আরো একবার আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুলি কুতুবশাহ স্টেডিয়ামে। 146 রানের লক্ষ্যমাত্রা সবুজ সংকেত সামনে। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার মৃন্ময় এবং প্রীতম মার্জিত তারা শুরু করতে এসেছেন। ওদিকে বল হাতে প্রথম ওভারের জন্য দীপাঞ্জন দাস, তপু। এক্ষেত্রে থার্ড ম্যানে খেলোয়াড় রয়েছেন শ্যামল বেজ। এজ ইজ জাস্ট আ নাম্বার। স্পিরিট, ক্রিকেটের প্রতি ডেডিকেশন, সেটা বারবার প্রমাণ করেছেন গত কয়েকটা মরশুমে। যেমন দুর্দান্ত টিম সাজিয়েছেন, পাশাপাশি নিজে মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছেন সমর্থকদের। থার্ডম্যান অঞ্চল থেকে তিনি ফেরত পাঠালেন শ্যামল বেজ, টিমের হৃৎপিণ্ড আমরা বলতে পারি, এবং ফিটনেস লেভেলটা সেটা বারবার প্রমাণ করছে। থার্ডম্যান ফাইন লেগে থাকাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কিছুটা কাট করিয়েছেন তপু, পরাস্ত হয়েছেন প্রীতম মার্জিত। ডট বল বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য। ডিপ থার্ডম্যান শ্যামল বেজ, ডিপ পয়েন্টে অনুপ লম্বু, কাভার, এক্সট্রা কাভার, লং অফ, লং অন, মিড উইকেট, স্কোয়ার লেগ। আরো একবার কাট করিয়েছেন। এখানেও বলের নাগালে অন্তত পৌঁছতে পারেননি প্রীতম মার্জিত। বিশেষ করে আজকে খোকন হালদারের ঝোড়ো ইনিংস এবং সরোজ প্রামাণিকের 47 রান। এবং শেষের দিকে রিবু এসে যে ঝড়টা তুলেছিলেন 17 রানের একটা ছোট হলেও বিধ্বংসী ইনিংস, এবং শেষ বলটা খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তপু, সেখানেও ওভার বাউন্ডারি এসছে, যার উপর ভর করে 145-এ পৌঁছে গেছিল স্মৃতিসংঘ। লিগ স্টেজের খেলা চলছে, প্রত্যেকটা গ্রুপে 3টে করে দল একে অপরের সঙ্গে খেলবে, একটা করে দল কোয়ালিফাই করবে সেমিফাইনালের জন্য। দীপাঞ্জন দাস এবার কিছুটা ব্যাটের মুখ খুলেছেন এবং এটা পয়েন্টের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে যাবে।
6 রানের জন্য। প্রথম ওভার বাউন্ডারি, ফিল্ডার ছিলেন খুব কাছে পিঠে বাউন্ডারি লাইনের, তবে খুব একটা সহজ ছিল না, চেষ্টাটা ভালো ছিল। রান সংখ্যা 8। বিনা উইকেটে। ওদিকে মাঠের বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্যামল বেজ যেভাবে ফিল্ডিং করে চলেছেন, তার অনুপ্রেরণা বোধহয় অতনু কর্মকার। প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখছি বাইরে থেকে সাপোর্ট পাচ্ছেন, সতীর্থের সাপোর্ট, সেটা কোথাও না কোথাও কাজে লাগছে। রিবু এসছেন বল হাতে, রিবু আবারও থার্ডম্যান অঞ্চলের দিকে। শ্যামল বেজ মিস্টেক করবেন এটা ভাবনা চিন্তার বাইরে, এটাই আমরা বলছিলাম একটু আগে। এজ ইজ জাস্ট আ নাম্বার। ফিটনেস লেভেল, ক্রিকেটের প্রতি ডেডিকেশন, ভালোবাসা, ফিল্ডিং দক্ষতার মাধ্যমে বারবার প্রমাণ করছেন শ্যামল বেজ। সিঙ্গেল এসছে। রান সংখ্যা 9। এবার কি মাঠের বাইরে যাবে? কাভারে খেলোয়াড় ছিলেন তার মাথার উপর দিয়ে 6 রান, ফ্ল্যাট 6। মৃন্ময়ের ব্যাট থেকে 6 রান এলো। রান প্রয়োজন 7 ওভার থেকে 146 লক্ষ্যমাত্রা, যেখানে শুরু থেকে অন্তত অ্যাটাকিং ব্যাটিং করতে হবে, রান আনতে হবে ক্রমাগত, আর সেই চেষ্টা করে চলেছেন দুই ব্যাটার মৃন্ময় এবং প্রীতম মার্জিত। স্লগ সুইপ খেলার চেষ্টা, পরাস্ত হয়েছেন, রান আসেনি। পরবর্তী ম্যাচ গ্রুপ বি, WLB 6-11 এবং শিবাজি স্টার। দুই টিমের ক্যাপ্টেন দ্রুত প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করুন, মূল মঞ্চের সামনে আসুন টসের জন্য। এবার উচ্চতা দূরত্ব কতটা পেয়েছে? প্রয়োজন যতটা ততটা কি? সম্ভবত আমরা ওয়েট করব সিগন্যালের জন্য একেবারে। আম্পায়ার এই ম্যাচটি পরিচালনা করছেন প্রসেনজিৎ দত্ত এবং শ্রীকান্ত বেহেরা, এবং তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায়, টেলিভিশন আম্পায়ারের ভূমিকায় রয়েছেন পিনাকি পন্ডা। ওভার বাউন্ডারি এসছে মৃন্ময়ের ব্যাট থেকে, এটা ভালো সংকেত সবুজ সংঘের জন্য। রিবু এই ওভারটাতে প্রায় 13 রান খরচ করেছেন। আরো একবার ওয়েল কানেক্টেড শট, উচ্চতা দূরত্ব দুটোই নিয়ে মিড উইকেট অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়িয়েছেন, অনেকটা দূরত্ব নিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে আছড়ে পড়ল বল। ওভার বাউন্ডারি এলো মৃন্ময়ের ব্যাট থেকে। তৃতীয় ওভার বাউন্ডারি এই ওভার থেকে অর্জন করলো সবুজ সংঘ, 27 বিনা উইকেটে। ওভারে শেষ বল, একটু গতির হেরফের করলেন, রিড করতে পারেননি, এখানে পরাস্ত হয়েছেন মৃন্ময়। ওভারের পরিসমাপ্তি, দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। দ্বিতীয় ওভার শেষে 27 বিনা উইকেটে সবুজ সংঘ। WLB 6-11 ক্যাপ্টেন, আপনাদের বারবার রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে মূল মঞ্চে আসুন টসের জন্য। পরবর্তী ম্যাচ গ্রুপ বি লিগ স্টেজ ফার্স্ট ম্যাচ। এই মুহূর্তে যে ম্যাচটা চলছে এটা গ্রুপ এ লিগ স্টেজের প্রথম ম্যাচ। প্রত্যেকটা গ্রুপে 3টে করে দল রয়েছে, 12টা টিম পার্টিসিপেট করেছে। লিগ স্টেজে একে অপরের সঙ্গে প্রত্যেকটা দল খেলবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা গ্রুপে 3টে করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। লিগ স্টেজে একটা করে দল কোয়ালিফাই করবে সেমিফাইনালের জন্য। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार मोहम्मद, खासिम साहब, सैफ खान साहब एंड मोहम्मद अली बेग सर। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट किए हैं इस टूर्नामेंट को, आप लोग आए हैं आज पहला दिन, बहुत बहुत बधाई आप तीनों के लिए। सन ऑफ ऑनरेबल एमएलए जुल्फिकार अली सर, अबरार मोहम्मद खासिम सर, सैफ खान सर एंड मोहम्मद अली बेग सर। সরোজ প্রামাণিক বল হাতে এসছেন, এবার কিন্তু লং অন অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, খেলোয়াড় রয়েছেন তার মাথার উপর দিয়ে,
বল যাবে সীমানার বাইরে 6 রানের জন্য। প্রীতম মার্জিত তিনি জয়েন করলেন পার্টিতে। যেভাবে একটা দিক থেকে ক্রমাগত মৃন্ময় আক্রমণটা সানিয়েছিলেন, সেই আক্রমণে আরো একবার নতুন জোয়ার সেটা বওয়ানোর চেষ্টা করছেন প্রীতম মার্জিত, আরো একজন প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার, নিজের নামটা প্রতিষ্ঠা করেছেন টেনিস ক্রিকেটে। প্রামাণিক একটু লেন্থে কমতি ছিল, ড্রাইভ করেছেন লং অফ অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে রিপুর হাত ঘুরে ফেরত আসছে, সিঙ্গেল এসছে। গত বল থেকে 34 বিনা উইকেটে সবুজ সংঘ। বিট করেছেন এবার, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছেন মৃন্ময়। সরোজ প্রামাণিক রিদিমটা পেয়েছেন, প্রথম বলটা থেকে কোনো রান খরচ করেননি, এখনো পর্যন্ত 4 বল থেকে 7 রান এই ওভারে। আরো একবার একটু খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা, আনইভেন একটু বাউন্স, কোথাও অনভিপ্রেত বাউন্স, তবে রান পেয়েছেন একটা, এবং এই 1 রানের সুবাদে দলগত সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 35, কোন উইকেট না খুইয়ে সবুজ সংঘ। লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 146 7 ওভার থেকে। প্রীতম মার্জিত এক্ষেত্রে ড্রাইভ করেছেন মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগ থেকে, দুজন খেলোয়াড় দৌড়ে গেলেন, মিড উইকেট অঞ্চল থেকে ফেরত এলো, ততক্ষণে প্রান্ত বদল, একটা রান চলে এসছে, 3 ওভারের খেলা শেষ। 3 ওভার শেষে সবুজ সংঘের রান 36 বিনা উইকেটে, 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 110 রান। এখান থেকে ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে সেটা রাজা আপনাদের শোনাবে। তার আগে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের রানার আপ ট্রফি সৌজন্যে সঞ্জয় হাঁসদা পালিশওয়ালা, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার থাকছে গোল্ড চেন সৌজন্যে বম্বে ক্যাট ক্যাম্প কাস্টিং, এছাড়াও ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য থাকছে এলইডি টেলিভিশন। পরবর্তী ঘোষণা আমরা নিয়ে আসবো পরবর্তী সময়ে। আপাতত কমেন্ট্রি বক্সে ওয়েলকাম রাজা বাবু। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। रन आउट का खतरा हो सकता है, अब जाना पड़ेगा वापस। अब यहाँ रन तो था नहीं आपके पास, अब रन आपके पास था नहीं, अब बोर्ड पे रन आपके लिए लगा नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से 140 से भी ज्यादा स्कोर ऑपोजिशन टीम पहले 7 ओवर में बना देती है, तो फिर वहां से आपको हर ओवर में कम से कम 20 रन चाहिए। उस हिसाब से आपने बनाए 12 रन प्रति ओवर, पहले 3 ओवर में 36 बनाया, 24 गेंदों में 110 चाहिए था, अब 23 गेंदों में 110। मतलब हो तो सकता है अगर आप देखें हर बॉल पे छक्के लगाएं, यानी किसी को रिंकू सिंह बनना पड़ेगा। दोनों टीमों के कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएंगे, स्टेज के सामने प्लीज आ जाएंगे दोनों टीमों के कैप्टन। अच्छी गेंदबाजी तोपू, एक परफेक्ट गेंदबाज है ये, अच्छी तरीके से जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये ओवर इनका। अगर ये ओवर अच्छा चल गया तो फिर आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। एक और डॉट बॉल, सिंगल के लिए भागेंगे जरूर, इस सिंगल के साथ स्कोर 37। इसके बाद जैसे टॉस होगा और दूसरे मैच के टॉस के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आज के अतिथि श्री अबरार मोहम्मद काशिम साहब, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही क्षणों में। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें। कड़क शॉट है ये, मृन्मय अपना बल्लेबाजी जारी रखे हैं, 11 गेंदे 32 बनाए खेल रहे हैं, एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जो अब तक इस समय कह सकते हैं कि लड़ाई जारी रखे हैं। पहला ओवर से ही 20 गेंदे 103 रन, 18 छक्के चाहिए अब यहां से।
20 बॉल पे 18 छक्के, ये कहना तो आसान है मगर लगाना मुश्किल है उस हिसाब से देखा जाए तो। बना नहीं है रन, कैच का कॉल था, सिंगल ही मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 44। एक खूबसूरत वातावरण आप देख रहे हैं, हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा करवाया जा रहा है टूर्नामेंट, हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स। अब ऊंची गई है, कैच का कॉल है। अब ये तो छोड़ते हैं नहीं, पकड़ा गया कैच, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट तोबू के खाते में जाता हुआ, दीपांजन दास। हेलो, अब यहां से औपचारिकता ही बची, आप कह सकते हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं, पिंटू रॉय, एक और आइकॉन। अब आइकॉन का ही तो काम है यहाँ पे, जिस टीम का आइकॉन बेहतर करेगा वो टीम आगे जाने को तैयार रहेगी। फिर से एक बार कप्तान साहब अपने हाथों में बॉल को लिया है, वाइट बॉल, सॉरी डॉट बॉल। सरोज प्रमाणिक, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है पूरे मैच के दौरान। अच्छा शॉट है ये। एक तरफ बल्लेबाजी उतनी बेहतर हो नहीं रही है मगर ये कह रहे कि आप चाहे जो भी करें हमें तो अपना काम करना है। इसी बीच एक और ओवर बाउंड्री मैनमॉय के बल्ले से आता हुआ। इस 6 के साथ 14 गेंदे 39 रन अपना और टीम का बढ़ता हुआ 50। इसी के साथ 50 पूरा किया, 16 गेंदों पे 96। अब 16 गेंदों पे 16 छक्के चाहिए। मगर सामने जो गेंदबाज है वो आपको इतनी आसानी के साथ रन लेने देंगे नहीं। एक डॉट बॉल और इस डॉट बॉल के साथ अब मुश्किलें और बढ़ गई है। इसके बाद एक और मुकाबला जो तैयार हो रहा है वो काफी और बेहतर मुकाबला आपको दिखेगा। वो मुकाबला बेहतर दिखेगा मगर ये शॉट बेहतर देखिए आप मेनमॉय का। मेनमॉय का बल्ला चुपचाप अपना काम किए जा रहा है। 17 गेंदों पे इन्होंने भी जड़ा है अर्धशतक। कमाल की बल्लेबाजी मेनमॉय के द्वारा भी। मेनमॉय साहब आप अपना काम बेहतर किए हैं। इसी बीच नो बॉल भी है और बाउंड्री भी आता हुआ। फ्रेट फ्रेट का फायदा उठा पाए नहीं है। पांच ओवर हुआ मुकम्मल, 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी? पीछे फील्डर भाग रहे हैं, पीछे फील्डर पकड़ा गया है। अच्छा छेद रक्षण। इसके बाद एक और मुकाबला, उस मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाइए। आज कुल 7 मुकाबले खेले जाने हैं। ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। पहला मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर 145 बना था, मगर इस समय लोकल बॉय मिनहाज कर रहे हैं बल्लेबाजी 6 के साथ। स्वागत है आपका। 68 बना है। इसके बाद भी एक ओवर और औपचारिकता ही है, मगर अगले मैच के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला मैच आपको और बेहतर दिखेगा। लोकल बॉय, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर पकड़ा गया। क्या जाना पड़ेगा वापस? एक और विकेट आता हुआ। अब हलदार साहब, आप तो अपना काम बेहतर ही कर रहे हैं। अच्छी कप्तानी सरोज प्रमाणिक के द्वारा जान रहे हैं कि कैसे अपने गेंदबाज को इस्तेमाल करना है। अच्छा शॉट है, अच्छा थ्रो भी था, मगर इतना बेहतर नहीं कि आप सीधे पवेलियन के लिए भेज सकें। अब जान रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं आप। खोखो नलदार, इनके खाते में 8 रन देके 1 विकेट आ चुका है। 50 रन ऑलरेडी ये जड़ चुके हैं। वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन। अब गेंदबाज हमेशा कहता है कि रिव्यू ले लो यार, मगर विकेट कीपर को मालूम होता है कि रिव्यू लेना है या नहीं, कप्तान को मालूम होता है कि रिव्यू लेना है या नहीं। अब कप्तान ही खुद विकेट कीपर है, तो फिर लेंगे या नहीं वो तो उन्हें ही मालूम है। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति 71 पे 4। ओवर की हुई समाप्ति। अब हम लोग चलेंगे सीधा टॉस बॉक्स की ओर, जहां मौजूद हैं सोमरेश जानादा। डॉट बॉल के साथ शुरुआती इस ओवर की औपचारिकता बची हुई है। टॉस के लिए तैयार हो चुके हैं हमारे अतिथि। अच्छी गेंदबाजी रिव्यू के द्वारा एक तो आ जाएगा और एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं इस समय हासिल करती हुई ये टीम। स्मृति संघो पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 146 का दिया था लक्ष्य। इसी के साथ ओवर की हो गई समाप्ति, यानी 80 बना है। 4 विकेट आपने गंवाए। बड़ी जीत
65 रनों से जीता इस मैच को। अब हम लोग चलेंगे टॉस की ओर दूसरे मैच के लिए। হ্যালো হ্যালো রাজা, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অ্যানাউন্সমেন্ট করনা, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। পরবর্তী ম্যাচ WLB 611 অন দ্য টস অ্যান্ড চুজ টু বল ফার্স্ট। পরের ম্যাচে WLB 611 টসে জিতে বল নিয়েছে। নেক্সট ম্যাচ দুটো টিম মাঠে নেমে যান। WLB 611 খুব তাড়াতাড়ি মাঠে নামুন, সমস্ত ফিল্ডার।